آج اسلام آباد، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز مری، میاں والی، اٹک، جھنگ، جنوبی وزیرستان اور سوات میں بھی بارش۔ ملاکنڈ میں بارش کے باعث دیوار گرنے سے 2 بہنیں جاں بحق۔ کوہاٹ میں مکان کی چھت گرنے سے 1 شخص جاں بحق۔ خیبر کی تحصیل جمرود میں 2 بچیاں سیلاب میں بہہ گئیں۔ 1 بچی کی لاش نکال لی گئی، دوسری کی تلاش جاری۔ پاکستان میں IMF کے نمائندے ماہر بینکی نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقتصادی استحکام کی رفتار حوصلہ افزا ہے۔ EFF کے تحت پاکستان کی کارکردگی مضبوط، ساختی اصلاحات معیشت کی پائیداری کے لیے ناگزیر ہیں۔ ماحولیاتی اصلاحات میں پاکستان کی پیش رفت قابل ستائش ہے۔ IMF ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت پاکستان کی کارکردگی تاحال مضبوط رہی ہے۔ مئی میں ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے پہلے جائزے کی کامیاب تکمیل ایک اہم سنگ میل تھی۔ بیرونی چیلنجز بدستور موجود ہیں، تاہم ابتدائی پالیسی اقدامات نے میکرو اکنامک استحکام کی بحالی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی میں مدد دی ہے۔ مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور پاکستان میں معاشی ترقی 2025 اور اس کے بعد مزید مستحکم ہونے کی توقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی تبدیلی کے لیے اپوزیشن کی مشاورت حتمی مرحلے میں داخل۔ گورنر فیصل کریم کنڈی، امیر مقام اور پرویز خٹک کی غیر رسمی سیاسی مشاورت۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان بھی مشاورت میں شامل ہوئے۔ ملاقات پرویز خٹک کی رہائش گاہ پر ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کے بعد ہوئی۔ فیصل کریم کنڈی سے امیر مقام کی گورنر ہاؤس میں بھی ملاقات ہوئی۔ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں اپوزیشن ممبران اسمبلی کی جلد ممکنہ بڑی بیٹھک کا فیصلہ۔ اپوزیشن قیادت نے سینٹ انتخابات مل کر لڑنے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ سینٹ انتخابات کے فوری بعد وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے مشاورت۔ ایک جمہوری انداز میں اپنا جو بھی ان کا موقف ہے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیں تو قانون کے مطابق انہیں اجازت ہے تو وہ رکھ سکیں گے، اور اگر وہ وائلنس کی طرف جائیں تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا۔ اسپیکر آفس ایک یعنی کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، تو وہاں پہ آپ آ جائیں، میں بھی وہاں پہ آ جاؤں گا اور وہاں پہ بیٹھ کے بات شروع کریں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ 90 دن، یہ 5 اگست، یہ لاہور کی طرف جو ہے وہ چڑھائی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ PTI مذاکرات چاہتی ہے تو احتجاجی دھمکیوں کا رویہ ترک کرنا ہوگا۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ PTI نے پرامن احتجاج کا رویہ رکھا تو لاہور میں جلسے کی اجازت مل جائے گی، بصورت دیگر قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ اس نظام کے اندر جو بھی بینیفیشری ہیں اور جو اس نظام کو اس وقت ہائی جیک کر کے چلا رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے بیٹھے، آپ دلائل سے ثابت کر دیں کہ میں نے ملک کے خلاف سازش کی ہے، مجھے اس چوک پہ لٹکا دیں۔ آپ جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی مانے گا، جس کی غلطی ہے ثابت ہو، بالکل سزا ہمیں دیتے ہیں، ہم سزا کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر سزا پہ بات آئے گی تو پھر ہر غلطی والے کو سزا دی جائے گی جسے جب بھی کی ہے غلطی۔ بتا دیا بھائی، عمران خان نے کہا کہ تحریک کو دوبارہ شروع کریں محرم کے بعد، 5 اگست تک پیک پہ لے کے جائیں، اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے جو 90 دن کی بات کی ہے وہ میں نے اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ بھائی اس کے بعد سیاست، ریاست اور اپنے مستقبل کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ایسا نہیں چلے گا بس دیٹس اٹ۔ بانی PTI نے کہا ہے کہ بات چیت فیصلہ سازوں سے ہوگی جن کے پاس اختیار ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیامین گنڈا پور کی بیک وقت مذاکرات کی پیشکش اور 5 اگست کو احتجاج کی کال، کہا 90 دن میں تحریک آر یا پار کر لیں گے۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ سسٹم کے بینیفیشریز اور ہائی جیکرز بیٹھ کر بات کریں، دلائل سے ثابت کریں کہ ملک کے خلاف سازش کس نے کی، کچھ ثابت ہو تو سزا صرف PTI نہیں، غلطی کرنے والے ہر فریق کو ملے۔ 5 اگست کی کال سے متعلق سوال پر کہا کہ بانی PTI کی کال پر کام شروع کر دیا ہے، 5 اگست کو احتجاج کو عروج پر لے جائیں گے، 90 دن کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو فارم 47 کا MNA قرار دیتے ہوئے الیامین نے ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے بھائی سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا چیلنج دیا، یہ بھی کہا کہ ان کا بھائی ہار گیا تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے، فضل الرحمان ہارے تو انہیں سیاست چھوڑنا ہوگی۔
47 पे है, तू जैली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा, एक और काम भी कर लेते हैं। मौलाना साहब कहते हैं ना जैली मैंडेट है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया, आज ये तुम्हें चैलेंज है। हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। अल्लाह का वास्ता है, इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले मौलाना साहब, मैं इतना कहूंगा, बाकी आप बात करें। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप उस मुफ्ती महमूद के बेटे को चैलेंज करते हैं, ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आज और अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ। पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाना। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, आपके अंदाज़े गुफ्तगू से मालूम हो चुका है कि आपके जाने का ज़माना आ चुका है। जल्द KP अवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार से घसीट कर निकाला था, पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ, अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलवा कर उनका मुकाबला मुझसे कराओ। क्या एहतजाज पर PTI में इख्तलाफात हैं? PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा के बयान ने सवालात खड़े कर दिए। आलिया हमजा ने एक बयान में कहा है कि क्या कोई इस बात पर रोशनी डालेगा कि बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाए अमल का ऐलान हुआ। उन्होंने ये भी पूछा कि PTI की एहतजाजी तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी। आलिया हमजा ने मजीद पूछा कि 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है। अगर आप में से किसी की नज़र से कोई बात गुजरी हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मेज़ पर आना होगा। एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI वाले दिन में भड़के मारते हैं और शाम में पिछले दरवाजे से आकर मिन्नतें करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, अली अमीन वज़ीर आला की तरह आए तो खैर मकदम करेंगे, क्लाशनकोफ लहराते हुए आए तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। अली अमीन गंडापुर मुतालियाती दौरे पर पंजाब आएँ, उन्हें दिखाएंगे और सिखाएंगे तालीम और सेहत के शोबे में किस तरह काम करते हैं, तरक्याती मंसूबे कैसे मुकम्मल होते हैं, सूबे के अवाम की खिदमत कैसे की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक रब्ता। नायब वज़ीर-ए-आज़म का आलमी अमन व सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और एंटोनियो गुतरेस आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन पर इसहाक़ डार की SCO के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि यकीनन आपका दौरा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मावन साबित होगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि उम्मीद है कि पाक ईरान और इराक़ सह मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल के हल में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी आज ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फ्रांस के दिफाई अखराजात बढ़ाने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। सदर मैक्रोन ने तयशुदा 2030 के मंसूबे से 3 साल कबल ही 2027 तक दिफाई अखराजात दुगने करने के अज़्म का इजहार किया। कहा 2017 में फ़ौजी बजट 32 अरब यूरो था, जो 2027 तक बढ़ाकर 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा। सदर मैक्रोन ने आलमी मंजरनामे को बयान करते हुए दिफाई अखराजात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मैक्रोन ने आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान और भारत जंग का भी जिक्र किया। पाक भारत जंग को हालिया दहाइयों की सबसे शदीद फ़िज़ाई लड़ाइयों में शामिल किया। सदर मैक्रोन का कहना था कि गुज़श्ता चंद महीनों में हमने ईरान पर बमबारी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें देखीं, जिनमें हालिया दहाइयों की शायद सबसे शदीद फ़िज़ाई लड़ाई शामिल हैं। यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा किया। दुनिया में आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है और इसके लिए कौम को मजबूत होना पड़ेगा।
26वीं आईनी तरमीम पर पार्टी फैसले के खिलाफ वोट देने पर तहरीक इंसाफ ने 5 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। निकाले गए अरकान में औरंगजेब खान कच्ची, मोहम्मद इलियास चौधरी, मुबारक जेब, उसामा अली और जहूर हुसैन कुरैशी शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 5 अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुबारक जेब पीटीआई के नामजद उम्मीदवार को हराकर बतौर आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली में पहुंचे थे, उन्हें भी निकाल दिया। पीटीआई के 26 अरकान की मअतली रेफरेंस पर हुकूमत और अपोजिशन कमेटी का इजलास। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बशर ने कहा कि हमारी मीटिंग्स जारी हैं, हमारा अभी किसी नुक्ते पर इत्तफाक नहीं हुआ, कोई डेडलॉक नहीं है, बातचीत जारी रहेगी, आइंदा कुछ रोज़ में दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, हमारी मज़ीद 1 या 2 मुलाकातें होंगी जिसमें चीज़ें फाइनलाइज होंगी, हम इन लोगों को डी सीट नहीं करना चाहते। अपोजिशन अरकान की नाअहली के हक़ में नहीं है, जो फैसला यहाँ होगा उसकी झलक आपको कौमी असम्बली और बाकी असम्बलियों में भी नजर आएगी। स्वाद बशीग्राम में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल होने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल। लाहौर बादामी बाग के इलाके में मुकाबला, एक मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में कच्चे के डाकुओं की जानिब से 200 मवेशी चोरी करने का मामला। पुलिस ने 6 रोज़ के ऑपरेशन के बाद डाकुओं के ठिकाने से 2 भैंसें बरामद करके मालिकान के हवाले कर दी। कहा बाकी मवेशी भी जल्द बरामद कर लिए जाएंगे। 7 जुलाई को कच्चे के डाकू 200 मवेशी लूट कर फरार हुए थे। रहीम यार खान के इलाके न्याजी कॉलोनी में 7 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद बच्चे की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू के मुताबिक अहले इलाका ने बारिश के पानी की निकासी के लिए गटर का ढक्कन हटाया था जो वापस नहीं रखा गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने 1 हफ्ते में गजा मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इस हफ्ते इसराइल हमास जंग बंदी बातचीत दुरुस्त संत में जाने की उम्मीद है। यूक्रेन की पैट्रियट मिसाइल भेजने का भी ऐलान। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी, मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। कतर में 1 हफ्ते से जारी इसराइल हमास बलबास्ता मुज़ाकरात में कोई पेशरफ न हो सकी। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मामूली जख्मी हुए थे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 16 जून की दोपहर महफूज सरकारी पनाहगाह के निचले हिस्से में इजलास किया जा रहा था। इसराइल ने इमारत पर 6 मिसाइल दागे। इमारत से इनखला के दौरान सदर पेज़ेश्कियान और दीगर ईरानी हुकाम को टांगों में मामूली चोटें आईं। ब्राज़ील ने भारत से आकाश मिसाइल की खरीदारी की बातचीत रोक दी। भारतीय आकाश मिसाइल के सिस्टम में जदीद ऑपरेशनल सलाहियतों की कमी का एतराज़। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील अब इटली के जदीद मॉड्यूल एयर डिफेंस सोल्यूशन सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदी को निसाबी तालीम में शामिल करने की कोशिश पर मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से मज़ामत का सामना। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली भारत में बोली जाने वाली ज़बान ज़बरदस्ती जनूबी और जनूब मशरक़ी रियासतों में नाफिज करने की मोदी की कोशिश के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। रियासत महाराष्ट्र हिंदी को स्कूलों के निसाब में शामिल करने की पॉलिसी तर्क कर चुकी है। तमिलनाडु मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर चुका है। अखबार के मुताबिक मोदी की हिंदी को ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश मकामी ज़बानों और उनकी सकाफत के लिए खतरा है। अमरीकी रियासत केंटकी में चर्च में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, हमलावर भी मारा गया। गवर्नर केंटकी की तस्दीक। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर तमाम फ्लाइट्स मंसूख कर दी गईं। साउथ एंड एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेगा। साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट होने वाली फुटेज में स्याह धुआं उठता देखा जा सकता है।